हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। जो लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट लेक्चर रहेगा, ट्रस्ट में। यहाँ पे आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बेसिक्स सीखेंगे और फिर उसके बाद बेसिक्स सीखने के बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। देखिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो बहुत सारे मेथड डेवलप करती है, सॉफ्टवेयर भी, टूल्स भी डेवलप करती है ताकि जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंबाइन करती है कंप्यूटर साइंसेस को, स्टैटिस्टिक्स को, मैथमेटिक्स को एंड इंजीनियरिंग को टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डेटा. So bioinformatics has been used for in silico analysis of biological queries using mathematical and statistical techniques, right? Bioinformatics क्या करती है? Derive करती है knowledge from computer analysis of biological data. These can consist the information stored in the genetic code, but also experimental result from various sources, patient statistics and scientific literature. रिसर्च इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूड्स करती है जैसे जिसमें हम डेवलपमेंट कर सके स्टोरेज को, रिट्रीवल को एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? रैपिडली डेवलपिंग ब्रांच है बायोलॉजी की एंड इट इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी using techniques and concept from informatics, statistics, mathematics, chemistry, biochemistry, physics and linguistics. It has many practical applications in different areas of biology and medicine. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स एंड अप्रोचेस for expanding the use of biological, medical, behavioral or health data, including those to acquire, store, organize, archive, analyze और visualize such data. Computational biology की अगर हम बात करें, development and application of data, analytical and theoretical methods, mathematical modeling and computational simulation techniques to the study of biological, behavioral and social system. क्लासिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल्स एंड कंप्यूटिंग मेथड्स दैट एम टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग डीएनए एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन. एनसीबीआई की अगर हम बात करें, जिसको हम नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, डिफाइन करता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स को एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? इट इज अ फील्ड ऑफ साइंस जिसमें बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एक सिंगल डिसिप्लिन में मर्ज हो जाते हैं. यहाँ पे तीन important sub-discipline है within bioinformatics: development of new algorithm and statistics with which to assess relationship among members of large data sets, analysis and interpretation of various types of data including nucleotide, amino acid sequence, protein domains and protein structures, and the development and implementation of tools to enable करता है efficient access and management of different types of information को. So even though यहाँ पे तीन terms है, even though the three terms bioinformatics, computational biology and bioinformation infrastructure are often times used interchangeably, broadly three may be defined as follows. Bioinformatics का मतलब होता है database like activities जो इन्वॉल्व करती है persistent sets of data that are maintained in a consistent state over essentially indefinite periods of time. Computational biology की अगर हम बात करें तो encompass करती है use of algorithm tools to facilitate biological analysis, while bioinformation infrastructures comprise करती है entire collective of information management system, analysis tools and communication networks supporting biology. Thus, latter may be viewed as a computational scaffold of the former two. So there are three important sub-disciplines within bioinformatics: development of new algorithm and statistics with which to assess relationship among members of large data set. Algorithm बनाते हैं, statistics बनाते हैं. Analysis and interpretation of various types of data including nucleotide and amino acid sequence, protein domains and protein structures, and the development and implementation of tools जो enable करते हैं efficient access and management of different types of information को. अगर हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेफिनेशन की, सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर अगर हम कंप्यूटेशन बायोलॉजी की बात करें, सो यहाँ पे क्या होता है?
मैथमेटिकल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्निक्स का यूज होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का, जिससे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। यूजुअली कैसे? बाय क्रिएटिंग और यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, मैथमेटिकल मॉडल्स और बोथ। वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द डेटा माइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, जो हमने गैदर किया है बाय वेरियस जीनोम प्रोजेक्ट। अदर एरियाज आर जैसे सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हैं, सिस्टम बायोलॉजी, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की स्टडी एंड वर्चुअल इवोल्यूशन हम इसमें देखते हैं। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करें, इज द साइंस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर डेटाबेसेस एंड एल्गोरिथम फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडिंग अप एंड एनहांसिंग बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिस्ट जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, और द वे अराउंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इज अ मोर ऑफ अ टूल। एक टूल की तरह है, ना कि डिसिप्लिन। So, application of computer technology to the management of biological information, specifically, it is the science of developing computer databases and algorithm to facilitate and expedite biological research. इसमें क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर डेटाबेसेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, कुछ एल्गोरिथम को भी डेवलप करते हैं, ताकि जो बायोलॉजिकल रिसर्च है उसकी जो स्पीड है उसको करते हैं, रियलाइज करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की टू द मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। द रिजल्ट इज दैट कंप्यूटर को हम एक साथ यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, मर्ज करते हैं बायोलॉजिकल डेटा को। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज कंसर्न विद द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजीज, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज करते हैं टेक्निक्स को इंफॉर्मेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से to obtain information about genomic और protein sequence data। अगर हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिसिस्ट वर्सेस बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की, तो बायोइन्फॉर्मेटिसिस्ट एक एक्सपर्ट है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के बारे में भी जानता है, बट उसको ये भी पता है कि कैसे इंटरफेसेस को लिखना होता है ताकि हम इन टूल्स को इफेक्टिव वे में यूज कर सकें। जबकि एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो होता है एक ट्रेंड इंडिविजुअल होता है, जिसको सिर्फ ये पता होता है कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को हम कैसे हम जाने विदाउट डीपर अंडरस्टैंडिंग। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एम है, 3-4 एम है। पहला जो होता है इसका कि जो बायोलॉजिकल डेटा ऑर्गेनाइज्ड है उसको हमें स्टोर करना है डेटाबेसेस की फॉर्म में। इससे क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं दे कैन इजीली एक्सेस टू एग्जिस्टिंग कैन हैव एक्सेस टू एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड अपनी जो नई एंट्रीज हैं उनको सबमिट कर सकते हैं। These data must be annotated, give a suitable meaning or to assign its functional characteristics. Databases जो हैं they must also be able to correlate between different hierarchies of information. For example, जेनेटिक जो होता है न्यूक्लियोटाइड का एंड प्रोटीन सीक्वेंस सेपरेशन के लिए we have protein data bank जहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सो उसके बाद आता है, ऐसा अगर फोन आए बेबी किसी का तो बता देना, ठीक है काटना मत, वो पार्सल वाले अंकल आएंगे ना, ठीक है। सो सेकंड एम है कि इसको डेवलप करना है टूल्स को, रिसोर्सेज को दैट एड इन द एनालिसिस ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल ब्लास्ट क्या करता है, सिमिलर न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड सीक्वेंस को फाइंड करता है। क्लस्टर डब्ल्यू अलाइन करता है 2 या मोर न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड सीक्वेंस को। प्राइमर 3 जो कि क्या करता है, डिजाइन करता है प्राइमर स्पोर्ट्स को पीजा टेक्निक्स के लिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एम जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वो ये है कि इनको एक्सप्लॉइट करना है इन कंप्यूटेशन टूल्स को, ताकि हम बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके रिजल्ट को बायोलॉजिकली मीनिंगफुल मैनर्स में। सो अगर हम इसके दो की बात करें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो गोल है वो क्या है, प्रोवाइड करना है साइंटिस्ट को विद मींस टू एक्सप्लेन नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, malfunction in these processes जिससे डिजीज होता है, और अप्रोचेस टू प्रूविंग ड्रग डिस्कवरी। अगर हमें नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज को पढ़ना है जो ऑल्टर हो जाती है डिफरेंट स्टेट में, बायोलॉजिकल डेटा को हमें कंबाइन करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर की फॉर्म में। सो देयरफॉर फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इवॉल्व हो चुकी है दैट की जो मोस्ट प्रेसिंग टास्क है इन्वॉल्व करते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। This includes nucleotide and amino acid sequence, protein domains, protein structures, actual process of analyzing and interpreting data. It is referred to as computational biology. Important subdiscipline within bioinformatics and computational biology includes करता है development and implementation of computer program जो enable करता है efficient access to use and predict करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को या फिर फंक्शन को and to cluster protein sequence into families of related sequences. Primary goal अगर हम बात करें bioinformatics का increase करना है understanding of biological processes. What sets it apart from the approaches, however, is it focus on developing and applying कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टेक्निक जो हम इस गोल को अचीव कर सके। एग्जाम्पल जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, विजुअलाइजेशन। मेजर रिसर्च एफर्ट्स इन द फील्ड इंक्लूड सीक्वेंस अलाइनमेंट, जीन फाइंडिंग, जीनोम असेंबली, ड्रग डिजाइन, drug discovery, protein structure alignment, protein structure prediction of gene expression and protein interactions, genome-wide association studies, molecular evolution and cell division, mitosis, etc. Bioinformatics entails the creation and advancement of database, algorithm, computation, and statistical technique and theory to solve formal and practical problems arising from the management and analyzing of biological data. So, tools using 3 areas are, for example, molecular sequence analysis, molecular structural analysis, and molecular functional analysis.
Over the past few decades, rapid development in genomics and other molecular research technologies and development in information technologies have combined to produce a tremendous amount of information related to molecular biology. Bioinformatics is again given to these mathematical and computing approaches used to make understanding of biological processes. Common activities in bioinformatics include mapping and analyzing DNA and protein sequence, aligning DNA and protein sequence to compare them, and creating and reading 3D models of protein structures. Bioinformatics से आगे encompass करती है use इसका tools का techniques का from separate disciplines जैसे कि molecular biology, source of data जिससे हमें जिसको analyze करना है, computer science ये सप्लाई करेगा हार्डवेयर forensic analysis and networks to communicate the result. फिर आता है data analysis and development basically define करेगा bioinformatics. So for this reason editors have decided to incorporate events from these areas into brief of the field. शॉर्ट हिस्ट्री अगर हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का 1993 में एक नई टेक्निक जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं इंट्रोड्यूस हुई थी और इसको इंट्रोड्यूस किया था जेलियस ने फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स इन सॉल्यूशन 1951 में। फिर क्या हुआ था, पॉलिंग थे हो रहे थे उन्हें प्रोड्यूस किया स्ट्रक्चर। आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात लेते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशंस के बारे में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो कहती है मैथमेटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को, कंप्यूटर साइंस को एंड आईटी को बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दीज प्रॉब्लम्स आर यूजुअली एट मोलिकुलर लेवल जिसको हम दूसरे मीन्स से सॉल्व नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ साइंस, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है एंड रिसर्च एरियाज जहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ना। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एप्लीकेशंस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, इनको हम यूजर लेवल भी क्या करेंगे, कैरी करेंगे। Here is a biologist including the students at PhD level can use certain applications and use the output in their research and study. बहुत सारे जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन है इसको हम फॉलोइंग ग्रुप्स में कैरी कर सकते हैं। जैसे कुछ होते हैं एप्लीकेशन सीक्वेंस एनालिसिस के लिए, कुछ फंक्शन एनालिसिस के लिए, कुछ होते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। एप्लीकेशन एल्गोरिथम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटाबेस का कंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे सीक्वेंस एनालिसिस ओल्ड एप्लीकेशन जो एनालाइज करती है बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को एंड कंपेयर कर सकती है बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको सीक्वेंस एनालिसिस में डिवाइड करेंगे। फंक्शन एनालिसिस में वो एप्लीकेशन जाएगी जो फंक्शन को एनालाइज करेगी, राइट, जो सीक्वेंस के अंदर एडेड है एंड हमें हेल्प करेगी प्रेडिक्ट करने में फंक्शन इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस प्रोटीन्स और जीन्स। आल्सो एक्सप्रेशनल एनालिसिस ऑफ वेरियस जीन इज अ प्राइम टॉपिक टू रिसर्च these days. Then last is structural analysis. Structural analysis when it comes to the realm of RNA and protein, structure play करता है एक vital role in the interaction with any other thing. This gave birth to a whole new branch जिसको हम कहते हैं structural mathematics. It's devoted to predict the structure and कि स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो उससे चेंज की वजह से कैसे जब भी चेंज होता है प्रोटीन का। सीक्वेंस एनालिसिस आता है लास्ट में। ये जो एप्लीकेशन है सीक्वेंस एनालिसिस की डिटरमाइन करती है उन जीन्स को जो इनपुट करते हैं रेगुलेटेड सीक्वेंस को या फिर पेप्टाइड्स को बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंस एनालिसिस के लिए बहुत सारे पावरफुल टूल्स है, कंप्यूटर्स भी है जो परफॉर्म करते हैं ड्यूटी of analyzing the genome of various organisms. These computer tools also see the DNA mutations in an organism and also detect करते हैं, identify करते हैं उन sequences को जो related हैं। Shotgun sequence technique are also used for sequence analysis.